friend. Hello friend. Knowledge Street, India's most reliable and trusted educational and entertainment channel welcomes you. Friends, here in this channel, we are a group of enthusiastic resource persons provide you with all types of educational and allied guidance. If you are a student, a teacher, an educationist, or parents, kindly stay tuned with us so that you get notifications of our newly uploaded videos. Friends, we set forth to solve R.S. Agrawal Mathematics of class 8 step by step and completely. Friends, if you have any questions or query regarding this, please email us or write down in the comment sections. Okay, let's begin the chapter number first, the first chapter of book R.S. Agrawal. What is the questions of chapter 1? Let's see. This is the R.S. Agrawal's book. Okay, first chapter, which is a rational number, and the first exercise 1a, and the first question is express minus 3 by 5 as a rational number with denominator. This is okay. Let's solve it. If you are not comfortable in English, okay, I'll solve it in. I'll help you with Hindi also. Okay, the first one is 20. Let's solve it. Here, question number 1 is the denominator will be 20. Okay, friend, denominator will be 20. Then how will you solve it? Minus 3 by 5. It is given. Okay, it is given. We have to make this denominator. This one is numerator and this one is denominator. We have to make minus the denominator 20. Okay, by which number we shall multiply 5 so that it yields 20. Let's guess it. Okay, if we multiply 5 by 4, we get 20. Okay, and then we have to multiply minus 3 by 4 also. Okay, so it yields minus 12 by 20 और ये इसका आंसर हो गया. ठीक है फ्रेंड, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन करते हैं. ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें डिनोमिनेटर 30 होगा. ओके, अब 30 माइनस 3 बाई 5 ये तो दिया हुआ है. अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 30 हो जाए? ओके, डिनोमिनेटर माइनस 30 होना चाहिए. इसको हम माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, और इसको भी माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना होगा. ऊपर जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे जिससे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को भी उतना से ही मल्टीप्लाई करना होगा. ये बन जाएगा 6 3 जा 18 और 5 6 जा 30. ये इसका आंसर हो जाएगा माइनस 30. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3. आर यू गेटिंग इट? हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो. चलिए चलते हैं. माइनस 3 बाई 5. अब देखिए माइनस 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 35 बनता है? तो हम देखते हैं. गेस बाई 5 इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर 35 बन जाएगा, और इसी तरह हमें 7 ऊपर से भी मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए ये बन जाएगा 21 और ये 35. ओके, एंड दिस इज द आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डिनोमिनेटर माइनस 40 होना चाहिए. तो अब हम देखते हैं माइनस 3 बाई 5 इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? बाय विच नंबर वी शैल मल्टीप्लाई 5 सो दैट इट yields 40. ओके, देन we can multiply 5 by 8 minus 8, and we have to multiply the numerator also by minus 8. Okay, it is 8 3 ja 24. Okay, and 5 8 ja 40 and minus here, and this is the answer. Okay, we have completed the first question. Let you see the second question. What is the second question? Yes friend, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. ये क्या करता है? एक्सप्रेस माइनस 42. Okay, express minus 42 by 98 as a rational number with denominator 7. Okay, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन दिया हुआ है 42 by 98. अब हमें देखना है कि 42 by 98 इसको किस नंबर से डिवाइड करें कि डिनोमिनेटर 7 हो जाए. तो अगर हम इसको 14 से डिवाइड करते हैं, ओके, 14 से, तो ये हो जाता है 7. तो इसको हम 14 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 14 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 7 14 जा 98 और 3 14 जा
42. Okay, and this is the answer. You can solve this in another way also. I will discuss it in later. Friends, now look at the question number 3rd. Express 48. Express 48 was 60 as a rational number with denominator 5. How can we solve this? Yes, solution. Write your solution. Okay, solution. Minus 48 by 60. You can write here its prime factorization. 48 to 24 to 12 to 6 to 3. You can write here 2 into 2 into 2 into 2 into 3 by, what is the prime factorization of 60? It will be 30 to 15 3 5. Okay, 2 into 2 into 3 into 5. 2 and 2 cut, 2 and 2 cut, and 3 and 3 cut. How much are left? Okay, it left 2 to the 4. Here we have to put minus 4, and in the denominator is 5. Okay, and in this way, this is the answer of question number 3. Friends, let's solve question number 4. Question number 4 is express each of the following rational numbers. Express each of the following rational numbers in standard forms. Let you learn what is the standard form of a rational number. The standard form हमें समझना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है. ओके फ्रेंड, चलिए हम लोग पहले इसको देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है. A rational number a by b is said to be in standard form if a and b are integers having no common divisors other than 1 and b is positive. ओके, तो हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म उसको कहा जाता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच एक के अलावा कोई और कॉमन डिवाइजर नहीं हो और डिनोमिनेटर जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए. चलिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं. इसको बनाना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में. दिया हुआ है -12/30. ओके, -12/30. अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या होगा? बहुत ही नॉर्मल सी बात है. इसका हो जाएगा 2 इंटू -2 इंटू -3, और इसका हो जाएगा आपका, यहाँ कर लेते हैं 2 से देते हैं, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3 और 5, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5. अब क्या क्या करता है? 2 कट, 3 and 3 कट. ओके, इट yields -2/5, and this is the standard form of this one. Okay, and this is the answer. Now question number 2 is given here. Question number 2, -14/49. Okay, how can we solve this, friend? We solve this -14/49. We can write here -14 as 2 into 7 minus, okay, and 7 into 7, 7 7 49. ठीक है, अब 7 और 7 को कट कर दीजिए, ये हो जाएगा -2/7, और ये इसका हो जाएगा स्टैंडर्ड. अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. क्या लिखा हुआ? 24/-64. आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, पॉजिटिव डिनोमिनेटर ही होना चाहिए. तो पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाने के लिए हम लोग -64 इसको ऊपर और नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये हो जाएगा -24/64. अब -24 को हम क्या कैसे लिख सकते हैं? हम इसको 2 2 जा 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको 2 2 जा 4, 8 एंड 16, 32 एंड 64. ओके, अब जो कॉमन है इसको हम लोग काट देते हैं. 2 2 2 2 2 2. इट विल बी -3/2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -3/8. This is the standard form of this one, and this is the answer. Now move to the next question. Question number 4, -36/-63. Okay, solve it. -36/-63. हम इसको कैसे लिख सकते हैं? We can write here by, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? चलिए इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ कर लेते हैं.
36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 18 टू 36, 2 से करेंगे 9, 3 से 3, ओके, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, 63, ये इसको हम 3 से दे सकते हैं, 2 1 3 7, 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 and 3 cut, this one cut, okay, it will be, and here minus and minus also cut, okay, it will be 4/7, and this is the standard form of this questions, okay, and this is the। अब हम लोग सॉल्व करेंगे RS अग्रवाल चैप्टर ऑन ए का क्वेश्चन नंबर 5, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑफ द रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर, इन पेयर्स में, इन जोड़ी में ग्रेटर नंबर कौन सा है, ओके, इसको चूज करना है, ठीक। पहला वाला दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है 3/8 और 0, ओके। तो हमें पता है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है, ओके। तो हम लोग यहाँ सिंपली ये सोल्यूशन लिख सकते हैं, एवरी पॉजिटिव नंबर is greater than 0, therefore 3/8 is greater than 0, and in the same way 3/8 is the answer, okay। चलें, let's move on the second question। It is -2/9 or 0, and its solution will be every negative number is less than 0, every negative number is less than 0, so we can write here -2/9 is less than 0, and therefore 0 is the answer, okay, 0 is the greater in this pair। Question number 3, okay, question number 3, -3/4 or 1/4, okay, -3/4 and 1/4। सोल्यूशन क्या होगा इसका, -3/4 और 1/4, ओके। जब हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर बराबर होता है, ओके, जब डिनोमिनेटर बराबर होता है तो वो नंबर बड़ा होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है। हम देखते हैं यहाँ -3 है, यहाँ -1 है, ओके। तो -3 छोटा है -1 से, इसीलिए इसमें -3/4 इज लेस देन 1/4, एंड देयरफॉर 1/4 इज द आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, -5/7 और -4/7। इसमें भी देखिए, इसमें भी न्यूमरेटर दोनों बराबर है, ओके, डिनोमिनेटर बराबर है। अब जब डिनोमिनेटर बराबर होता है तो वो नंबर बड़ा होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है। हम लोग देखते हैं यहाँ 5/7 -4/7, तो इसमें माइनस है, इसीलिए -4/7 बड़ा होगा, देयरफॉर -4/7 इज द ग्रेटर इन द पेयर। क्वेश्चन नंबर 5, 2/3 और 3/4। अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले हम देख लेंगे 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है। तो एलसीएम इक्वल टू 3/4 का एलसीएम होगा 12, ओके, 12 हो गया। अब 2/3 को इसका डिनोमिनेटर को 12 बनाना होगा। 12 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 8 और 12। अब इसकी बारी 3/4, अब इसको भी डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, तो 3/4 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये हो जाएगा 9/12, ओके फ्रेंड। अब नाउ 8/12 एंड 9/12 वी हैव, ओके। इन दिस विच वन इज द ग्रेटर। हम देखते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का बराबर है, तो वो नंबर बड़ा होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, इसीलिए 9/12 ग्रेटर है, एंड देयरफॉर 9/12 is greater, and in the same way 3/4 is the greater in the pair, okay। क्वेश्चन नंबर 6 अब लोग हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है -1/2 और -1, इनमें से कौन सा बड़ा होता है। चलिए, इसमें बड़ा होगा -1/2, क्योंकि माइनस में जब होता है तो वो नंबर बड़ा होता है, हाँ, जिसका वैल्यू छोटा होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू छोटा है तो इसलिए बड़ा होगा, हाफ है, ओके। -1/2 is greater than -1, therefore -1/2 is the answer, okay friends।
अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ। ओके, विच ऑफ द टू रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। ओके, इन पेयर्स में कौन सा नंबर बड़ा है। चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है -4/3 वर -8/7, इसमें बड़ा कौन सा होगा। चलिए सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। ओके, -4/3 और -8/7। अब यहाँ पर 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम ऑफ 3 and 7, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 21। ओके, 21 हो गया। अब देखिए एलसीएम तो निकल गया। अब -4/3। ओके, -4/3 है, हमें डिनोमिनेटर को 21 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा। -4/3 मल्टीप्लाइड बाई 7। ओके, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा -28/21। ओके, अब -8 को लेते हैं एंड -8/7, इसको कितना से मल्टीप्लाई करने पर ये 21 बन जाएगा। तो -8/7 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 21। अब यहाँ से देखिए -28/21 एंड -24/21, देखिए डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है, तो वो नंबर बड़ा होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है। और ये नेगेटिव में भी है, तो नेगेटिव में न्यूमरेटर न्यूमरेटर है, इसीलिए कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। इसका मतलब है -4/3 and -8/7, among this -8/7 is this is the greater. Okay, therefore -8/7 is the answer. चलिए फ्रेंड, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 7/-9 और -5/8। सबसे पहले हम देख लेंगे कि जब भी हम कंपेयर करते हैं विच वन इज द ग्रेटर, कि कौन सा बड़ा है, तो हम सबसे देख लेते हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो -7/-9 इसको पॉजिटिव करने के लिए 7 को -1 से और -9 को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा -7 एंड नीचे हो जाएगा 9। सेकेंड वन है एंड सेकेंड वन इज -5/8। चलिए अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितने का निकालेगा, निकालना होगा एलसीएम ऑफ 8 एंड 9 या 9 और 8, कितना आंसर निकला 72 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं -7/9, इसको 9 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 72 हो जाए। ठीक है, चलिए 9 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 72 बनता है, और हमें ऊपर न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 56 और नीचे 72 एंड -5/8 ये भी है। अब बताइए इसको कितना से मल्टीप्लाई करने पर 72 बनेगा। -5/8, इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा -45 और नीचे हो जाएगा 72। अब दोनों नंबर ले लीजिए, दोनों नंबर है -56/72 और ये -45/72। डिनोमिनेटर दोनों का बराबर है, तो वो नंबर बड़ा होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, और इसमें न्यूमरेटर माइनस में है, इसीलिए -45/72 बड़ा होगा। इन द सेम वे therefore -45/72 any -5/8 is the greater number, and this is the answer. Okay, let moves to the third question. Question number 3. This one is -1/3 or 4/-5. Okay, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन करेंगे, देखिए इसमें भी 4/-5 डिनोमिनेटर नेगेटिव में है। चलिए इसको सबसे पहले पॉजिटिव कर लेते हैं। -5 ऊपर -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी -1 से -4/5। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 3 and 5 इट विल बी 15। ओके फ्रेंड, 15 हो गया। अब हम 15 को यहाँ पर लाते हैं, ये हो जाएगा -1/3 है। अब नीचे डिनोमिनेटर को 15 कैसे बनाया जाएगा, कितना से मल्टीप्लाई करने पर, हम लोग देखते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा, ये हो जाएगा -5/15 एंड और दिया हुआ है -4/5, इसका भी हमें 15 बनाना होगा। चलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 12, ये जो हो जाएगा 15। ओके, अब दोनों को देख लीजिए, कंपेयर कीजिए। -5
बाई 15 और यह -12/15। कौन सा बड़ा होगा? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही बड़ा होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का बराबर है, इसीलिए -5/15 इज ग्रेटर। therefore -1/3 is the answer. Okay, have any problem? No. Let's move on the next question. Next question क्या दिया हुआ है? Next question 4 number 9/-13 और 7/-12। बहुत ईजी है। चलिए अब हमको इनको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन। ओके फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है ये नेगेटिव है, इसको हमें पॉजिटिव बनाना होगा। इसलिए -9/-13 को हम लोग -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा पॉजिटिव। -9 ये हो जाएगा 13। एंड अब क्या करेंगे? 7/-12, इसका भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा -7/12। अब एलसीएम निकालेंगे किसका? 13 एंड 12 का। 13 और 12 का एलसीएम कितना होता है? चलिए हम लोग यहाँ पर गुना करके देख लेते हैं। 13 एंड 12, 13 2 जा 26। ओके, ये दिस इज 13, 6 5 156। अब आ जाइए 9/-9/13, इसको कितना से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 156 हो जाए? तो इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 156 और ये जो 108। इन द सेम वे एंड -7/12 इक्वल टू -7 into 12 into 13 and this one also 13. It yields 156 upon 3 7 is 21, 1 7 1 is 7 and 9 -90. And now we can write here -108/156, okay, and -91/156. Denominator are same, so the number will be greater which have the greater numerator. Okay, so we can write here 108. This one is the greater. Therefore, 7/-7/12 were 7/-12, okay, is the answer. Now move to the question number 5. Okay, question number 5. What is it? 4/-5 were -7/10. सॉल्यूशन करते हैं इसका। ओके, 4/-5 क्योंकि ये नेगेटिव में है, हमें इसको पॉजिटिव बनाना है, तो 4 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 को -1 से, तो -4/5 हो जाएगा। ओके, और ये डिनोमिनेटर वैसा ही है। चलिए अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 5 एंड 10, इसका एलसीएम कितना होगा? इसका हम लोग निकाल के देखते हैं। 5 10, ठीक है, 5 1 जो 5 2 यानी कि 10 हो जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये पहला है 4/-4/5। अब 4/5 को किससे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर 10 हो जाए, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर बन जाएगा ये 8/10। ओके, इन द सेम वे हमें अब 7 के बारे में लिखना होगा। एंड -7/10 इक्वल टू -7/10, ये तो 10 है ही, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं, देयरफॉर पहला है 4/5 का, तो 4/5 का 8/10
और इसका -7/10 -7/10 ओके। ये -4 माइनस होगा -8/10 एंड -7/10। अब बताइए इनमें से बड़ा कौन सा होगा? ग्रेटर क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो वो बड़ा होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, तो इसीलिए ये बड़ा है। तो देयरफॉर -7/10 is the greater number and this is the. Now we have to solve question number 6. Okay, it is given -12/5 or -3। ठीक है, अब -12/5 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन -3 को हम -3/1 लिख सकते हैं। ओके, अब एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ 5 and 1 इट विल बी 5। ओके, अब -12/5 इसको कुछ नहीं लिखना है, -12/5 ही रख दीजिए। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा कि ये नीचे 5 आ जाए। ठीक है, -3/1 को, तो हम लोग इसको -3/1 इंटू 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -15/5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं, -12/5 and -15/5 denominator are same, so the number which have greater numerator will be greater. In this case -12/15 is greater, so the answer will be -12/15. Okay, we have done question number 6.